ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਵੇ ਤਾਲ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨ ਕੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਬਿਹੂਣੀ ਪਾਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਨਚੈ ਬਾਜੇ ਬਾਵੈ ਰੂਪ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਊਚੇ ਕੂਕੈ ਬਾਦਾਂ ਗਾਵੈ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੈ ਪਿਆਰ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆਂ ਜਾਪੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਦੀ ਸੁਬਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਸਵਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕੇਸ਼ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋ ਪਾਇਆ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹੈ ਇਕ ਆਪੋਂ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਬਚਨ 11 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਜੋ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 468 69 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਕਰ ਜਾਏ ਖਲੋਵੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਟਿਕਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਤ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਬਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋ ਲੇਖ ਪਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ।
इस गल नूं समझिया ते मानवता की जो मनुखता की हार्दिक हालत है, काया आरण मन विच लोहा पंच अगन ते तलाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई, कि हर मनुखी हिरदा तप रहा है, घर घर दे अंदर अग लगी विकारां दी। भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिलै तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक तिष्ठ सदेहा। कि साडा ये शरीर, साडी सोच, साडी विचार, साडी आत्मिक जिंदगी तां पवित्र हो सकती है। साडा मनूर वर्गा सड़िया होया मन जिहड़ा है, साडी विचारधारा, साडी सोच वो कंचन बन सकती, सोना बन सकती है, शुद्ध हो सकती है जदों असीं अपनी जिंदगी विच गुरु वाले बन जाइए। गुरु अमरदास जी का बहुत बड़ा तजर्बा है। ते आप जी ने आनंद साहब जी की पवित्र बाणी के अंदर जदों सहज की गल कीती है, तो आप जी कहते भी जीवन में मैं बहुत यतन करके वेख्या, कर्म कांडा दे नाल अपनी मत अनुसार कर्म करके, लेकिन अज गुरु अंगद साहब जी की कृपा के नाल मैं इस सिट्टे ते पहुंचया हाँ, कर्मी सहज ना उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए। कि कर्म कांडा दे नाल अपनी मत द्वारा किए हुए कर्मां दे नाल सहज टिका अडोलता जीवन में नहीं प्राप्त हो सकती, और सहज प्राप्त करन तो बिना जीवन के जिहड़े शंके ने वो निवृत्त नहीं हो सकते। क्योंकि असी गुरु को जाते हाँ, दुनिया का कोई मनुख भी धार्मिक जिंदगी विच धार्मिक स्थान के उत्ते धार्मिक रहबर के कोल जदों पहुँचता है, उहदी इक्को एक सोच हुंदी है, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। गुरमता दर्शन सिद्धांत नूं ये मानदी कि जीवन विचों शंकियां दी निवृत्ति होनी, जीवन विचों शंके दूर होने, शंकियां तो रहत जिंदगी प्राप्त होनी, जिन्हों दसम पातशाह जी ने भरम भेखते रह न्यारा सो खालस सतगुरु हमारा कहा। सतगुरु कहते सहज तो बिना सहसे जो शंके ने वो साडे अंदर खत्म नहीं हो सकते। न जाए सहसा किते संजम, संजम का अर्थ हुंदा है कोई तरीका, कोई मैथड, कोई वे ऑफ लाइफ जिन्हों आप कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं, रहे कर्म कमाए। फिर सतगुरु कहते सारी मनुखता के अंदर एक बहुत अहम बात पैदा हो रही है, सवाल खड़ा हो रहा है, सहस जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। ये जिहड़ा साडा शंकियां दे नाल मन मलीन हो चुका है, इनू किवें धोता जाए, किवें पवित्र किया जाए। तो सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने आप ही कृपालता की, आप ही बख्शिश की, फिर रहमत की साडे ते, कहण लगे मन धोवो शब्द लागो, हरस्यों रहो चित लाए। कि जिहड़ा मन विकारां नाल साडा अपवित्र हो चुका है, उहनूं धोवो निता प्रति, और निता प्रति और धोण की गल किथे करिए, गुरु घर जाके, गुरु की संगत में जाके, और उत्थे जो असी मन पवित्र करांगे, मन धोवो शब्द लागो, हरस्यों रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, ये सहसा ए बजाए। भाई गुरदास साहब जी कहते कि जिमें असी निता प्रति कपड़े पहनते हैं और साढ़े अंग ना लग के बाहरों मिट्टी धूड़ पैण दे नाल वो मैले हो जाते हैं, जैसे तो वसन अंग संग हवै मलीन, साबन सलल मिल निर्मल होत है। फिर असी साबन ते पानी का मिलाप करके उसनूं साफ करके फिर पहनण योग बना लेंदे हाँ। जैसे तो सवालक है, जैसे तो सरोवर सवालक है, अशाद्यो जाल झोल पिया निर्मल देखे अशोत है। जिमें किसी सरोवर का पानी उत्ते कूड़ा करकट इकट्ठा होया होवे, पानी दिखाई नहीं दिंदा। जैसे तो सरोवर सिवालक है, अशाद्यो जाल झोल पिया निर्मल देखियो अशोत है। उस वेले फिर वो पानी जिहड़ा पवित्र हो जाता, निर्मल हो जाता है। जदों असीं कूड़ा करकट पासे कर दिए, निर्मल पानी प्रगट हो जाता है। और सूरज छुपण तो बाद तारे जिहड़े चमकदे ने, हनेरे दे कारण चमकदे ने। मनुख दे अंदर जदों विकार प्रबल हुंदे ने, अज्ञानता दे हनेरे करके हुंदे ने।
जैसे निस अंधकार तार का चमत्कार। निस दा अर्थ दा रात, रात वेले तारे टिमटमाउंदे ने, बहुत चमकदे दिखाई देंदे ने, पर हनेरे दे कारण दिन वेले भी तारे होंदे ने, लेकिन दिन वेले तारे सानूं दिखाई नहीं दिंदे क्योंकि सूरज दा सामना नहीं कर सकते। इवें ही जिस मनुख दे हिरदे विच अज्ञानता होवे उस मनुख दे जीवन विच विकार रूपी तारे चमकदे ने, पर जदों गुरु नानक पातशाह जी दी किरपा हो जाए, जिवें भाई गुरदास साहब जी ने बचन कीता है, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। इवें भाई गुरदास साहब जी कहंदे होत उजियारो दिन करके अदोत है। साडे जीवन दे विच जिवें होत उजियारो दिन कर दा भाव सूरज, ये सूरज का प्रवाची लफ्ज़ है। होत उजियारो दिन करके अदोत है। अदोत मीन जदों वो प्रगट हो जाता है, सूरज चढ़ जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो तारे अलोप हो जाते हैं। इवें ही जीवन दे विच तैसे माया मोह भ्रम कै होत है मलीन मत। माया दे भरम करके, दूजेपन करके, दूजे भाव करके, मोह कारण साडी जिहड़ी निर्मल मत है वह मलीन हो जाती है। तैसे माया मोह भ्रम कै होत है मलीन मत। सतगुर ज्ञान ध्यान जगमग जोत है। सतगुरु का जो ज्ञान है, जदों उहदे विच असीं ध्यान जोड़ लईए, जिहड़ी गल गुरु अमरदास पातशाह जी कह रहे, मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए, कि जिहड़ा मन धो लवे शब्द में जुड़ जाए, वो हरि दे नाल चित जोड़ के रहिंदा। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, ये सहसा ये बजाए। सतगुरु कहंदे हे नानक आख संसार दे सामने कि ये गुरु की किरपा दे नाल सहज पैदा होंदा है, तो फिर गुरु की किरपा दे नाल सहज पैदा होके शंकियां दी निर्वृत्ति हो जाती है। तैसे माया मोह भ्रम कै होत है मलीन मत। सतगुर ज्ञान ध्यान जगमग जोत है। गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब जी के अंदर बड़ी सिंपल एग्जाम्पल दे करके सानू सारी मानवता नू ये सिक्ख्या दी कि मन नू किवें पवित्र कर सकते हैं। मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईया ओ धोए, भरीए मत पापां कै संग ओ धोपै नावें कै रंग। इस करके जिहड़े लोग सहज विच लीन हुंदे ने, सहज नू धारण कर लैंदे ने, गुरमुख सच्चा पंथ है सिख सहज कर जाए खलोवै, वो फिर सच विच समाए रहिंदे ने। सच विच समा करके उन्होंने फिर जीवन की असलीयत की समझ लग जाती है कि जीवन दे विच जिहड़ा कलयुग है उहदे विच की कुछ वातावरण पैदा होंदा है, किस तरह का वातावरण बनता है, वो फिर अपने जीवन दे विच इस गल नूं समझ लैंदे ने। खोटे को खरा कहे खरे सार ना जाने, अंधे का नाव पारखू कली काल बिडाणे। सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता, आवत को जाता कहे जाते को आया, परकी को अपनी कहे अपनों नहीं पाया, मीठे को कड़ुआ कहे कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करें ऐसा कल मैं डीठा। जिथे सब कुछ उलट पुलट होया होवे, जे कोई नाम जपदा प्रभु का, गुरु नानक साहब जो मथुरा गए ने, उत्थे गुरु नानक पातशाह जी सामने भाई मरदाना जी ने सवाल रखा भी इत्थों के लोग बड़े चंचल ने, सानू दसो कृपा करके। होलियां दे दिन सन, उन्होंने अपने मत के अनुसार गुरु साहब जी ने जवाब दिता कि कलयुग आ गया, इस करके सतगुरु जी ने उत्थे शब्द उच्चारण किया, सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन अर तपत रहे, सा धरती सा पौन झुलारे जुग जी खेले थाम कैसे। सतगुरु कहते असल विच जे को नाम लय बदनामी कल के लखण ए। जे कोई नाम लैंदा ना जपदा है हुक्म विच चलन दा करदा, उहनूं कहंदे बड़ा ज्ञानी बनिया फिरदा, बड़ा महापुरख बनिया फिरदा, बड़ा संत बनिया फिरदा, अपने आप नूं ਉਹਦੀ बदनामी करते हैं। संसार के अंदर संसारी जीव ਜਿਹੜੇ संसारी बिरती वाले लोग ने ਉਹਦੀ बदनामी करते हैं। कल के लखण ए, कलयुग के यही लक्षण ने। चेरी की सेवा करें ठाकुर नहीं दिसै, पोखर नीर बरोड़िया माखर नहीं दिसै। तो कलयुगी जीवां की जिहड़ी कार्रवाई हुंदी ना, जिन्ना वो कर्म करते हैं, वो फिर जिवें किसी छप्पड़ का पानी, कोई बंदा टोभे का पानी, किसी सरोवर का पानी लैके बरोलीए रिड़की जाए,
ਤੇ ਫਿਰ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਲੱਭੇ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੈ ਸੋ ਛੀਜੈ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਇਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀਰੀ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ ਦਿਸੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਦਿਸੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕੂੜ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੋਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੂੜ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਲਖ ਵੇਤਾਲ, ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੇਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਉਹ ਬੇਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਿਨੂਰਾ ਧੀ ਜਿਨੋਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਜਿਨ ਭੂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸੇ ਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਪੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਆਹਾਜ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਿਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ? ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੀਜ ਕੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਵੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਪਤ ਸਹਿਤ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੀਜ ਕੇ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਬਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰੇ ਸਲਾਮ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ,
बाजे नेजे होण शानो शौकत होवे, लखां लोग रोज़ सलाम करते होण, लखां उपर फरमाइश तेरी हुक्म चलदा होवे, लख उठ राखे मान ते इज्जत करन वेलकम कहण लोग उठ के। जां पत लेखे ना पवै तां सब निराफल काम। जे लेखे विच पत नहीं, प्रभु दे दर दे उत्ते इज्जत प्राप्त नहीं होई ना, रब्बी दर दे उत्ते गुरु दे दर दे उत्ते, तां सब निराफल काम। हर के नाम बिना जग धंधा, जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा। ये अन्ने का अन्ना ही रहा मनुख, फिर इनू अज्ञानता के कारण अन्नापन इहदा दूर नहीं हो सकिया। फिर सतगुरु कहते लख खट्टियां लख संजियां खाजें, लख आवें लख जाहें, जां पत लिखै ना पवै तां जी कित्थै फिर पाहें। बंदा लखां इकट्ठा कर लवे, लखां रुपया इकट्ठा कर लवे, लखां दा धन इकट्ठा कर लवे, लखां दा खा लवे, आण जाण विच लखां खर्च कर लवे, लेकिन जदों तक पत हिसाब विच नहीं आउंदी, प्रभु दे दर ते प्रवान नहीं हुंदी, इज्जत प्राप्त नहीं हुंदी उथों, तां जी कित्थे फिर पाहें। तां फिर ये जिंद ये हिरदा सानू सच की प्राप्ति किवें होवेगी, मान कित्थों प्राप्त होएगा जी दे विच। लख शास्त्र समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण, जां पत लिखै ना पवै तां सभे कुप्रवान। कुप्रवान का अर्थ है, इनू कुप्रवान नहीं पढ़ना चाहिए पाठ नू। कुप्रवान जिमें कुकर्म सुकर्म तो कुकर्म, कुप्रवान जिहड़ा प्रवान ना होवे, जिहड़ा एक्सैप्ट ना हो सके। सतगुरु कहते जदों पत नहीं पई, इज्जत नहीं बनी, इस करके फिर की करना चाहिए, सच नाम पत उपजै। जिहड़ी इज्जत प्राप्त होनी है सच्चे नाम में जुड़ के प्राप्त होनी है, नाम की राही प्राप्त होनी है। कर्म नाम करतार, करतार दा नाम ओदा कर्म, नाम नू जप के ओदे कर्म दी राही सच नाम भी जुड़ करके इज्जत उपजदी है, इज्जत पैदा होंदी है। फिर सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। ऐने से हिरदा जे वसै नानक नदरी पार। दिन रात साडे हिरदे विच ओ परमात्मा बस जाए, तां फिर जाके हे नानक वो जिहड़ा संसार दे विच मनुख जिहड़ा भवजल तो विकारां तो माड़ियां आदतां तो पार हो सकदा है। इस करके सतगुरु कहंदे सच काल कूड़ वरतिया, कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए। जिन्हां दे उत्ते किरपा होई, सहजे ही सच समाया दी दात मिल गई, वो लोग अपनी इज्जत नूं बरकरार कर गए। अब क्यों उगवै दाल, दाल दा अर्थ है दुफाड़ होया मन। जिमें कोई जिमीदार जिहड़ा है वो अपनी जिंदगी विच खेती कर लग्या दाणियां नूं पहलां दल लवे, छोलियां नूं दल लवे, कणक नूं दल लवे, ग्राइंड कर लवे, फिर उहनूं बीजण दा यतन करे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई अंकुर नहीं पैदा होएगा। जे एक होए तां उगवै, रुती हो रुत होए। सतगुरु कहंदे फिर अब मैंने हुण इस जिंदगी दे विच क्यों उगवै दाल, दाल किवें उगे। जे एक होए तां उगवै। भगत कबीर जी कहते जाकी दिल साबत नहीं ता को कहा खुदाए। जिन्हां दे अंदर एकाग्रता नहीं, जिन्हां दा दिल साबत नहीं, सोच साबत नहीं, जिहड़े दुविधा च फसे पए ने, कदी किते घुमदे ने, कदी किते भटकदे फिरदे ने, सतगुरु कहते फिर उन्हां दे अंदर ये दाल वांगू जिहड़ा मन दुफाड़ होया होवे, सोच दुविधा विच पई होवे, उत्थे नाम दा अंकर नहीं पैदा हो सकदा। पैदा कदों होएगा जे एक होए तां उगवै। जे एकाग्रता होएगी मन दे अंदर तां उगवै, तां ये नाम उगेगा। उहदे नाल फिर रुती हो रुत होए। जिमीदार जिथे खेत नूं वाहुंदा है, कल्टीवेट करदा, उहनूं चंगी तरह तैयारी करदा, उहदी रांहदा, उहनूं सुहागा फेरदा, फिर उहनूं इरीगेट करदा, संचाई करदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਦੀ बड़ी महत्ता है। जे किते बेरुता बीज बीज देवे ना, तो सतगुरु कहते कुरुता बीज बीजै नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाएंदा। ਉਹਦੀ हल बाउण की मेहनत भी चली गई, खेती धरती भी दा फायदा नहीं दे सकिया, जो पानी की सिंचाई की वो भी बर्बाद गया, जिन्नी मेहनत की उन्हें टाइम समेत वो सारा कुछ ही बर्बाद हो गया। इस करके सतगुरु कहते ये रुत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीने जिदड़े,
कल केवल नाम आधार। जो ये रुत है ना जिन्हों ये लोग कलयुग कहते हैं, गुरमत ने तो अगे जाके व्याख्या देनी है भी सोच जिहड़ी है वो साडी सतयुगी सोच, फिर साडी द्वापरी सोच, साडी जिहड़ी है फिर जिहड़ी दूसरा सोच हो सकती है। युग साडा सोच के अनुसार बदलेगा। कलयुग भी साडी सोच विच है। जदों साडे जीवन दे विच कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा, जदों तृष्णा की अग दे उत्ते बंदा सवार होवे, आधार तृष्णा की अग होवे, क्रोध की अग होवे ते झूठ अगवाई कर रहा होवे, उदों कलयुग है। साडी सोच दे विच जदों भी असी इस पक्ष में जीवन बतीत करांगे उदों समझ लो कलयुग है। चाहे वह सतयुग जिन्हों कहते हैं उदों लोग सन, चाहे अज दे लोग ने। इस करके रुत लेकिन सतगुरु उन्हां दी सेंस विच ही गल करते हैं। सतगुरु कहते जे तुसीं कहंदे हो कि हुण कलयुग आ गया है तो कलयुग दे विच फिर तुसीं ध्यान करो अपनी जिंदगी च कि इत्थे तां केवल ते केवल हुण अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। जे तुसीं कहंदे हो कलयुग आ गया, फिर कलयुग दे विच हुण सिक्का तां नाम दा चलेगा। जिवें कोई मुगल पीरियड के टाइम की जो मुगल सरकार का सिक्का अज चलावे इंडिया दे विच जां किते होर देश विच जाके, उहदा कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा। हाँ, पुरानी करंसी करके उन्होंने खरीद लवे कोई शौकीन बंदा होवे रखण वास्ते घर दे अंदर, वखरी गल है, लेकिन उहदी कोई वैल्यूएशन नहीं, अज दी कीमत कोई नहीं उहदी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का नानकशाही सिक्का जां खालसाई सिक्का अज कोई चलावे नहीं चलेगा। इवें ही अज कर्मकांडी जिंदगी विचों कोई सच नूं लभण दा यतन करे, सतगुरु कहते नहीं अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। हुण तां केवल ते केवल हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल दा सिक्का ही चलेगा। मन रुत नाम रे, नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुर सेवो नीत, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमावो, तां व्यापारी जानियो लाहा लै जावो। जे तुसी अपनी जिंदगी च धर्म रूपी भूमि दे विच सच रूपी बीज नूं बीजोगे, इहो जी किरस करोगे, किरसानी करोगे। जिहड़ी किरस इत्थे लफ्ज़ है किरस, ये किरसानी दा जां किरसान दा एबरीवेट कीता होया, संखेप कीता होया शब्द है। ऐसी किरस कमावो, जिवें मन हाली किरसानी करनी, उहदा ही रूप है किरसानी दा किरस। इहो जी किरस कमाओ, इहो जी किरत करो, इहो जी किरसानी करो, तां व्यापारी जानियो लाहा ले जावो। फिर सतगुरु कहंदे कलयुग मैं हर जियो एक, होर रुत ना काई। कलयुग दे विच केवल ते केवल एक परमात्मा ही है, होर कोई दूजी रुत नहीं, होर कोई दूजा सीजन नहीं। नानक गुरमुख हिरदा राम नाम लेह जमाई। गुरु दे सन्मुख हो करके अपनी जिंदगी दे विच राम नाम दा तू अपने जीवन च नाम पैदा कर। कलयुग में एक नाम उधार, नानक बोले ब्रह्म विचार। कलयुग दे विच केवल ते केवल एक नाम द्वारा ही उधार हो सकता है। सतगुरु नानक पातशाह जी ये ब्रह्म विचार बोलते हैं। कलयुग गुरमुख नाम लै पार पर भवजल भरन वाला। भवजल भरन वाला दा पाप, भवजल रूपी जो समुंदर है ना, उन्होंने असी पार कर सकते कदों? सतगुरु के सन्मुख होकर के नाम लै। कलयुग गुरमुख नाम लै पार पर भवजल भरन वाला। भाई गुरदास साहब जी ये बचन करते हैं। इस करके जीवन दे विच केवल ते केवल नाम की गल, हुक्म मनण की गल, क्योंकि गुरु अमरदास पातशाह जी ने किरपा की, उन्होंने किरपा करके ये बख्शिश की। कहते चौं जुगां का हुण नवेड़ा, नर मनुखा नूं एक निधाना, जत संजम तीर्थ उन्हां जुगां का धर्म है, कल मैं कीरत हर नामा। ये जो कर्म कांड ने, जो उन्हां लोकां दे बनाए हुए अपने साधन ने पेट पूर्ति वास्ते, उन्हां जुगां का धर्म है। धर्म का अर्थ निजम। उन्हां युगां विच असूल चलते सन, निजम चलते सन, चलते होणगे, लेकिन कल मैं कीरत हर नामा। कल युग दे विच केवल हरि नाम की कीर्ति जिहड़ी है वही चल सकती, होर कोई नहीं।
कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगा पत स्यों जाएंदा। इस करके सतगुरु कहते आ जी अवस्था पैदा हो चुकी है ना साडे जीवन दे विच, सच काल कूड़ वरत्या, काल काल खवे ताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। जे एक होए ता उगवै, रुत्ती हूं रुत होए। जे एकाग्र चित होएगा मनुख ਇਹਦੀ सोच ਤਾਂ फिर ਇਹਦੇ अंदर नाम अंकर पैदा होएगा, रुत्ती हो रुत होए। ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰੁੱਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। चिड़ी चौकी पौ फुटी बगन बहुत रंग, अचार्य रूप संतन रचे नानक नामे रंग, वो अमृत वेला। ਜਾਂ फिर सवाही सलाह के सुरत्या उपजा चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ। जिहड़े सुबह जागते ने अमृत वेले जाग के उस परमात्मा नाल जुड़ते ने, वो पिछले राती उठ बहंदे वाली अवस्था जिहड़ी है, जो हुक्म ने सानू सिख रहत मर्यादा वालों पहर रात रहिंदी जागना, वाहिगुरू सिमरन करना, इशनान करना, नितनेम करना, और गुरु रामदास जी वालों दिते सिद्धांत, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठर नाम ध्यावै, उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सरन आवै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावै, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर से गुरु मन भावै, जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर से गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर से की, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। लेकिन मैं एक गल साझी करनी चाहता हाँ, जिथे अमृत वेले की संभाल नूं रुत चंगी रुत मनी है, उत्थे साडा मनुखी जिंदगी भी एक चंगी रुत प्राप्त हुई है। किसी जानवर कोल, किसी पंछी कोल ये नहीं हो सकता कि वह गुरु घर आके धार्मिक स्थान पर इकत्तर हो करके रब की बंदगी कर सकन, भगती कर सकन। वो जिहो जे पैदा होंदे ने उहो जी जिंदगी बतीत करके अपनी जिंदगी नूं बशर करके वो समाप्ति कर जाते हैं जीवन की। लेकिन मनुखी जिंदगी के अंदर बदलाव, इहदी तरक्की, इहदी डिवेलपमेंट बचपन तो लैके आपां अखीर तक देखिए कितना कुछ बदलाव है इहदे जीवन च। वो काहदे वास्ते ने कि सानू ये मनुखा जिंदगी एक वधिया रुत, रुत्ती हो रुत, रुत्तां विचों सुहावणी रुत, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो। सानू ये सीजन मिलिया है, सानू ये रुत मिली है, और इस मनुखा जिंदगी दी रुत नूं प्राप्त करके आपां एक काम करिए कि जिहड़ा मनुख इस गल नूं समझ लवे, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। अडोलता विच उहदे नाल समा जाइए आपां। आत्म जिणे जिहड़ा आत्मक तौर ते अपने ते जित प्राप्त कर लवे, जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने कहा सी, बहुत छोटी जी पंक्ति और जगत प्रसिद्ध हो चुकी है, लोगों के मूँह चढ़ चुकी है, साडे स्कूलों दी बिल्डिंगां ते कंधां ते लिखी जाने वाली मन जीत है जग जीत, एक स्लोगन बन चुका लोगों के हिरदे विच मूँह ते, कि जिहड़ा मन नूं जित लवे वो जगत का जेतू बन जाता है। आत्म जिहड़ा सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा, ये जिहड़ी सुहावणी रुत, ये जिहड़ा युग सानूं प्राप्त होया, शरीर युग, मनुखा जिंदगी रूपी युग, मनुखा जिंदगी रूपी रुत, रुत्ती हो रुत, ये सुहावनी रुत है। इस रुत की संभाल करिए, चंगे गुणां नूं प्राप्त करके इंसान बनिए। हिंदू बनना बड़ा सौखा है, मुसलमान बनना बड़ा सौखा है, होर कुछ बनना बड़ा सौखा है, लेकिन इंसान बनना बड़ा औखा है। सतगुरु पातशाह जी ने जो सत्यार की गल की है, वो इंसानियत की गल की है सारिਆਂ वास्ते। फिर वो किमें हो सकता है, उत्थे भी कॉमन गल की, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते खुजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने भी किसी वर्ग विचों भी, किसी जात विचों भी, किसी धर्म विचों भी, जिसने भी प्रभु का हुक्म मन लिया, जिन्हें सिमरन कर लिया, जिन्हें नाम जप लिया, जिन्हें रब के असूलों नूं धारण कर लिया, रब के हुक्मां की पालना कर ली, गए मशक्कत काल, नानक ते खुजले केती छुट्टी नाल। एक तो ये उदाहरण दी गुरु साहब जी ने खेतीबाड़ी विचों, सच काल कूड़ वरत्या,
कल कालख वेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए तां उगवै रुत्ती हों रुत होए नानक पाहै बाहरा रुत्ती हों रुत होए कि जिमें दाल जड़ी है ਉਹ नहीं उग सकती इवें दुफाड़ हिरदे विच कदी भी नाम का अंकर नहीं पैदा हो सकता। इस करके गुरु अर्जन साहब जी के वो बचन प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत इनू अपने हिरदे का आधार बनाइए अपनी जिंदगी का आधार बनाइए। हुण कपड़ा रंगण की दूसरी उदाहरण दे रहे हैं सतगुरु नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए। पा कहते ने जदों कपड़े नूं रंग चाढ़ना होवे तो उन्होंने लाग लाई जाती है उन्होंने उबालिया जाता है पानी में बड़ा कष्ट है। जो असी रंग देख के बड़े खुश होंगे बड़ा सोहना रंग लगता है लेकिन वो रंग चढ़िया किमें है उन्होंने खुंब चाढ़िया गया उबालिया गया साड़िया गया पानी में पा के उन्होंने बड़ा उन्हें अपनी कुर्बानी की है। सतगुरु कहते जिमें पा तो बिना लाग तो बिना पाहे बाहर का अर्थ है लाग तो बिना कोरा रंग ना सोए कोरा जो अनलग हो जे ते पा ना लगी होवे ओनू रंग नहीं चढ़ सकता। सोए का अर्थ वो रंग जिहड़ा असी चाहते हैं चाढ़ना वो नहीं चढ़ सकता। नीला काला पीला कोई भी रंग होवे जो साडे मन पसंद होवे सतगुरु कहते लाग तो बिना वो रंग नहीं चढ़ सकता। भै विच खुंब चढ़ाई है हुण जीवन विच किवें रंग चढ़े नाम दा जाको हर रंग लागो ए जुग में लाल रंग तिसको लगा जिसके बड़ भागा मैला कदे ना होवी ने लागै दागा। ये सानू प्यारा रंग किवें चढ़े हर रंग ना लहे सुभागा वाला अवस्था किवें प्राप्त होवे किवें साडे जीवन दे विच सानू ये जीवन जाच प्राप्त होवे कि साडे जीवन दे विच ओ रंग ना उतर सके हो। भाई दयाला जी नूं उबालिया ना जदों देग विच ते आखिया उन्होंने तैनूं असीं बहुत तेरा रंग फेट कर दांगे कलर फेट कर दांगे जिहड़ा तू कहंदा नाम दा रंग चढ़िया पर देग विच उबालण तो बाद भी वो रंग नहीं उतर सकिया। काया रंगण जे थिया प्यारे पाइया नाव मजीठ रंगण वाला जे रंगा साहिब ऐसा रंग ना डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तेना कै पास धूड़ तेना की जे मिलै जी को नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंतै भावे आपे ही रावे। जे किते असी जिंदगी दे अंदर काया रंगण दा भाव काया रूपी मटकी बन जाए जे थी प्यारे पाइया नौ मजीठ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम रूपी रंग मजीठ पा दईए। मजीठ का रंग पक्का गिणिया जाता है कसुंबे का रंग कच्चा गिणिया जाता। दोहां की गल की गुरु नानक पातशाह जी ने बाबा फरीद जी ने भी की है गुरु साहबान ने की है कि कसुंबे का रंग कच्चा है तो मजीठ का रंग पक्का पर मजीठ नूं कढ़ना बहुत पैंदा है उबलना बड़ा पैंदा है तां वो पक्का रंग चढ़दा है। काया रंगण जे थिया प्यारे पाइया नौ मजीठ रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंग ना डीठ। फिर दुनिया अंदर कोई रंग उहदे मुकाबले विच वेखिया ही नहीं जा सकता। भाई तारू सिंह जी खोपरी उतार दी कहण लगे तेरा रंग उतार देना कहंदे उतार के वेखो तुसीं। भाई मनी सिंह जी दे जदों गुट दे उत्ते टोका रखिया उन्हें कहंदा नहीं तू ज्वाइंट बाई ज्वाइंट कट्टण वास्ते तैनूं हुक्म है ना मैं अपने मालक के हुक्म नूं पाल लिया तू अपने मालक की हुक्म नहीं पालना कर। मैनूं कोई दर्द नहीं जीवन च कोई पीड़ा नहीं मैं महसूस करांगा क्योंकि मैं अपने मालक के हुक्म विच हाँ। ऐसा रंग ना डीठ इहो जिहा रंग नहीं चढ़ सकता। पर कदों चढ़ेगा भै विच खुंब चढ़ाई है जदों साडे अंदर रब दा भै गुरु दा भै पैदा होवे अदब पैदा होवे। भै विच वैसैं भै रहें भै विच कमावें कार इत्थे मिलन वडियाइयां दरगह मुख द्वार। जदों उस अदब विच भौ विच आके क्योंकि भै बिन भगत ना होए तेरी निर्मल भौ भाया हर गुण गाया हर वेखै राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा भरपूरे। अपनी जिंदगी विच उहनूं सर्व व्यापी मनना उहदे डर विच रहना हाजर नाजर समझना ये भै है ये खुंब चाढ़ना है।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਕਟ ਬੁਝਿਆ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਹ ਲਾਗ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਉਦਮ ਦੀ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ ਬੜ ਭਾਗੀ ਧਨ ਖਾਟ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨਾ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੁੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਵੀ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ, B.Tech M.Tech ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਮਨਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਬਣਜਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਪੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਖਬਰ। ਕੂੜ ਦੀ ਸੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕੂੜ ਦੀ ਗੱਲ, ਝੂਠ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਕਰ ਉਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਲ ਵੀ ਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ, ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੌਧਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੂੜ, ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ। ਨੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਇਬ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਦਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੱਦ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੱਦ ਕੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ,
जिवें अपने चपड़ासी नूं कोई बंदा भेजे भी फलाने नूं बुला के लियावे, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕਿਵੇਂ ਚੂਸਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਵ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਰਈਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚਿਲਮਾ ਭਰਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ, ਅੰਨੀ ਰਈਅਤ, ਅੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਵ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਲਕ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿਲਮਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਮਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਜੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਬਾਜੇ ਬਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਜੇ ਬਾਵੇਂ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ, ਉਹ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਜਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਰਈਅਤ ਜਾਂ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਤਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਬਾਜੇ ਬਾਵੇਂ, ਬਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਜੇ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ ਬਾਦਾਂ ਗਾਵੇਂ। ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ 12 ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਡਰਪੋਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। 12 ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਨ, ਹੈ ਨੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਜੋਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਬੂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਰ, ਪ੍ਰਹਾਰ, ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸੋਲੰਕੀ, ਇਹ 4 ਰਾਜਪੂਤ ਕੌਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਡਰਪੋਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 22 ਵਰਤ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 4 ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰ, ਪ੍ਰਹਾਰ, ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸੁਲੰਕੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾही सरदारी न भई कदाही इन्हीं को सरदार बनाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं, जेडे कहते हैं काम हमारा तोलन तकड़ी नंगी करद कदे नहीं पकड़ी टिड़ी उड़े तो हम डर जाएं दुश्मन से कैसे लड़ पाए। जेडे तकड़ी तोलना ही जानते सन, केवल कभी करद नूं किरपान नूं हथ ला के नहीं सी वेखिया। सतगुरु ने उन्हां दे अंदर जोश भरिया, उन्होंने लखां का मुकाबला किया। चमकौर का युद्ध इस गल का सबूत है साडे सामने कि 40 भुखे भाणे बहादुरां ने किवें लखां की फौज का मुकाबला करके जित प्राप्त की और गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने हाथ नहीं आ सके। इस करके सतगुरु कहते मैं जो तमाशा वेख रहे हैं बहादुर बनन का गल्लां करन दा जोधा का विचार तो करते हैं, लेकिन उच्चे कूके बादा गावे जोधा का विचार 12 गाउंदे ने, बादा का भाव 12 गाउंदे ने, उहदा प्रसंग सुणाउंदे ने, गल्लां करदे ने, लेकिन अपने जीवन विच बहादुरी ते गुरु नानक ने टुंबिया जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। जे इज्जत खुआर करके तुसीं तुरोगे ना ते जो कुछ खाओ पीओगे उहदे नाल की बनेगा, हराम होएगा जिंदगी चो, ਉਹਦਾ लाभ नहीं जिंदगी प्राप्त हो सकेगा। इस करके गुरु नानक ने एक स्लोगन दिता संसार नूं जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर रीजै कान ना कीजै। और ये सिद्धांत सारिया ने अपनाया अपनी जिंदगी। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। लेकिन कलयुगी बिरती की करती मूर्ख पंडित नाओ जिहड़ा मूर्ख बंदा होवे उहनूं पंडित जी कह के बुलाते लोग। हिकमत हुज्जत, हिकमत मैंने चलाकी हुज्जतां करनियां, वो चलाकियां अपनियां हुज्जतां करदा संजय करें प्यार। भाव अपनी जिंदगी दे अंदर संजण विच धन जोड़न विच ही प्यार लगा रहिंदा उहनां नूं भी पैसा किवें आउंदा, धन दौलत किवें आउंदा, गलत तरीके नाल आ जाए बहु परपंच कर परतन लियावे सोधा रपे आन लुटावे मन मेरे पूले कपट न कीजै अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै छिन छिन तन शीजै जरा जनावे तब तेरी ओक कोई पानी ना पावे। कबीर साहब जी ने यह शब्द उच्चारण किया तब तेरी ओक कोई पानी ना पावे। जिस प्यार में तू लग्या होया ना। लेकिन शाहजहां का जीवन पढ़ के वेखो, औरंगजेब तो पानी मंगदा भी मैं हिंदुओं तो कुरबान जाना जिहड़े सराधां विच अपने पितरां नूं पानी भेजदे हैं, मैं प्यासा बैठा मैनूं एक पानी का प्याला दे दे। वो कहंदा नहीं जिस सूफ नाल जिस स्याही नाल तूं चिट्ठी लिखी पत्र लिखिआ उहनूं चूस लै, तेरे वास्ते संसार विच पानी नहीं। ते जे किते कबीर जी वेले शाहजहां हुंदा ना तो कबीर साहब शाहजहां का नाम मैंशन करदे उहदे च तब तेरी ओक कोई पानी ना पावे। जो वेला आंदा ना उस वेले औखा तेरी ओक तेरी बुक में कोई पानी पिलाने वास्ते तैयार नहीं, तेन पानी का घुट देने वास्ते तैयार नहीं, जिन्होंने वास्ते तू लगा रहा पूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करें गवावें। धर्मी लोग धर्म का विखावा करते हुए धर्म करते हैं, भाव धर्म का विखावा करते हैं लेकिन गवा देंदे ने। किवें मंगे मुख द्वार, क्योंकि उन्होंने निष्कामता नहीं, डिमांड है, डिजायर अंदर कि मैं फलानी थां ते तीर्थ यात्रा की, मैनूं हुण इहदे अवजाने विच इन्ना कुछ मिलना चाहिए, मैनूं इहदे मुकाबले विच आ मिलना चाहिए। सतियां मन संतोख उपजा देना के विचार दे दे मंगे सहसा गुण शोभ करे संसार। मंगे मुख द्वार ते गुरमत कहंदी मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। ये मुक्ति नूं भी कहंदा नहीं मैनूं नहीं चाहिए। कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज मैं रहो अंत अर आद। चरण कमलों की मौज दे विच अंत तो लैके आद तक मैं रहिंदा हाँ। मैनूं कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मैनूं कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मैनूं कोई होर नहीं चाहिए। कवन नरक है सुरग विचारा संतन दोरादे हम काहू की कान न कटते अपने गुर प्रसादे। अब तो जाय चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है को न सकै पछानी। लेकिन जिहड़े मंगे मुख द्वार की जिंदगी बतीत करते हैं सतगुरु कहते धर्मी धर्म करें गवावें। जति सदावें जुगत न जाने छड्ड बहें घर बार। जति का अर्थ हुंदा जत रखण वाला, उच्च आचरण का धारनी मनुख। वो केवल विखावा करते हैं। एका नारी जति होए पर नारी धी भैन बखाने।
देख पराइयां चंगियां मामा भैणां धीआं जाणे। गुरमत ने जो सिद्धांत दिता, सतगुरु कहंदे साडा घर विच रहिंदियां होया गृहस्थ जीवन विच रह के जती होना, लेकिन वो घर-बार नूं त्याग दिंदे ने। छड्ड वह घर-बार नूं त्याग दिता उन्होंने। उन्हां दी धारना सी हाटी बाटी रह निराले, रूख बिरख उद्याने, कंद मूल आहारो खाइए औधू बोले ज्ञाने, तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल ना लागे काई, गोरख पूत लोहा रीपा बोले जोग जुगत बिद साई। कहते गुरु नानक पातशाह गोरख का पुत्र गोरख का चेला लोहा रीपा कहता भी साडा तां आह सिद्धांत सी सब तो पहला घर बार त्यागते हैं, असी हट्टियां बट्टियां धंधे कर्म नूं त्यागते हैं। ते गुरु नानक पातशाह कहते तुहाडे वर्गे बंदे ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखट्टू होए के कन फड़ाए, फकर करे हो जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। जिहड़ा गुरु पीर सदादा होवे, भुखा नंगा मरदा होवे, मंग मंग के खांदा होवे, सिखा तू कदी उहदे चरनां ते कदी मत्था ना टेकी, क्योंकि तेरा सिद्धांत घाल खाए किश हथों दे, नानकरा पछाणे से। 100 गज का प्लाट छड़ दिता, घर छड़ता, एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ च डेरे बना के बहिंदे ने लोग के पखंड करन वास्ते। इस करके छड्ड बहें घर बार, जुगती नहीं जानते। जुगती की है? जीवन जीवन की जुगती, जीवन जीवन का ढंग की है, उन्होंने नहीं पहचानते कि असी चंगे इंसान किवें बन सकते हैं। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन किवें कर सकते हैं। सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन पानी मुच उपाय दुख दालद भन धर, जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा धार। ये जिहड़ी जुगती है सरबत दे भले दी जुगती, ये नहीं धारण कर सकते। सगों वो तो जे बच्चा कोल रो पवे मां नूं शराप दे देना, बच्चे नूं भी शराप दे देना, मैनूं डिस्टर्ब किया ने समाधि तोड़ दी। ते गुरु साहब जी ने सानू किरपा की, सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलत्र बिचे गत पाई। नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खबंदियां बिचे होवे मुक्त। सब को पूरा आपे होवे, कलयुगी जीवन की खोर निशानी वेखो। सतगुरु कहते कोई बंदा ये नहीं कहता भी मेरे चूण ताई है, सब को पूरा आपे होवे। हर कोई बंदा अपने आप को रब बना के बैठा, रब वर्गा पूरा कहता है, लेकिन पूरा होंदा कोई नहीं है। जिदन मर जाता उदन लोग कहते आंढी गुआढ़ी भी अज फलाना बंदा पूरा हो गया। जिंदगी च सतगुरु कहते पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही। पूरा होने का भाव की है? जिहड़ा पूरे विच समा के रहे, सहजे ही सच समाएंदा, पूरा तो वह होएगा। लेकिन मरण तो बाद सारी जिंदगी शराबां पी के बेकार करके गलतियां करदियां खुनामियां करदियां नास्तिकता विच रहिंदियां अपनी जिंदगी हंकारी बतीत करदियां जिदन मरिया लोगों ने आख्या पूरा हो गया। सतगुरु कहते नहीं, पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही। जिहड़ा पूरे विच समा जावे वह पूरा। पर वह हंकार विच कहंदे ने जिहड़े लाभ पाप दे राजा महता बन के बैठे हुंदे ने, कूड़ हुआ सिकदार बनया हुंदा है, कामनेव सद पुछिए ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ, अंधी रेत ज्ञान बिहोणी, ज्ञानी नचे बाजे बावे वाले, भावना वाले, उच्चे कूके बादा गावे। ये सारे मूर्ख पंडित हिकमत उजंद करते हैं, ये सारे ही कहते हैं सबको पूरा आपे होवे। असी पूरे हाँ, साडे सामने कोई दूजा नहीं, घट ना कोई आख है। अपने आप को कोई घट नहीं कहाउंदा, बल्कि कई तो रब बन के बह जाते हैं, कई गुरु बन के बह जाते हैं। पत परवाना पिछे पाईए तो नानक तोलिया जापे। सतगुरु कहते जदों पत इज्जत रूपी परवाना मैंने बट्टा तोलन वास्ते, जिवें तकड़ी च बट्टे पा के तोलते सन, इवें हुण तां इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, बैलेंस साडे बदल गए, तकड़ियां बदल गईयां। लेकिन पुराने जमाने जो तकड़ी बट्टे पा के तोलना, सतगुरु कहते जो इज्जत रूपी बट्टा पिछे पाईए, एक पासे इज्जत गुण इहदा जीवन ते दूजे पासे उत्थे कच पकाई उत्थे पाए, नानक गया जापै जाए। उदों फिर पता लगेगा दरगाह दे विच प्रभु दे सच दा नवेड़ा करके तां नानक तोलिया जापै। तोलिया जापै दा भाव तोलण तो बाद पता लगदा है भी इहदी इज्जत बनी कि नहीं बनी, कौन भारा है ते भारा कौन होएगा, इज्जत कौन लैके जाएगा। प्राणी एको नाम ध्यावो, अपनी पत सेती घर जावो।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਦੀ ਸੋ ਬੱਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਫਾੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਰੁੱਤ ਗਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕੋਰੇ ਦੇ ਕੋਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੰਬ ਚਾੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਬਾਜੇ ਬਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਰਾਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਬੱਦੀ ਸੋ ਬੱਜਗ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੱਜੇਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਦੀ ਸੋ ਬੱਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਬੱਜੇਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣਬਾਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਤਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਸਾਰਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਬਣਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਰਤਾਪੁਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ? ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੀ ਦਾਤਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਹ ਨਾ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਪੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਟੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਟ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਵਾਪਰਾ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਦਰਗਾ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ। ਚੰਗੇ ਉਹ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੌੜੀ
तुर कर्म जिन्हां को तुध पाया। हे मालिक जीओ, तुर तो जिन्हां नूं तू कर्म पा दिता, जिन्हां दे उत्ते बख्शिश कर दिती, जिन्हां दे उत्ते तू रहमत कर दिती, कर्म दा भाव बख्शिश, तां तिन्ही खसम ध्याया। सतगुरु वाले बन के उन्होंने उस खसम नूं ध्याया। उन्होंने समझ लगी खसम छोड़ दूजा लगे, डुबे से बन जा रहा, सतगुरु है बोहता बिरला कि ना विचारिया, कर किरपा पार उतारिया। तदों तिन्ही खसम ध्याया, तिन्हां ने खसम नूं ध्याया है। फिर उन्होंने ये भी समझ लग गई, इन्हां जनता कै बस किश नाही, इन्हां जनता दे बस विच कुछ नहीं। काठ की बपरी पुतरी कहा कर बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पेख बनावे बाजीगर वो तैसो ही सा जाना। जिवें काठ की पुतली, लकड़ की पुतली, जिमें जिमें उन्होंने डायरैक्शन दिंदा नचाउण वाला, जो नचाए त्यों त्यों नचन बत्ते अपन भाणियां। इस करके इन्हां जनता कै बस किश नाही, तुद वेकी जग तो पाया। वेकी दा अर्थ है कई किस्मां दा, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। इस करके सतगुरु कहते साडा हुक्म उत्थे नहीं चल सकता। तुद वेकी, वेकी का अर्थ कई किस्मां दा, जगत उपाया, तू जगत पैदा किया। इहदे विच असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार। एक ये भी किस्म पैदा की जिहड़े धार्मिकता दे विच जिंदगी बतीत करते हैं। लेकिन इसे फुलवाड़ी दे अंदर, इसे बाग दे अंदर असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मलपा खाहे, असंख निंदक सिर करें भार, नानक नीच कह विचार। ये भी पैदा किया तू सच्चे पातशाह भी तेरी इस फुल बाड़ी दे फुल ने, बाड़ी दे बूटे ने, तुद वेकी जग तो पाया। एक नानू तू मेल लै, ये सारियां विचों कईयां नू तू अपनी किरपा करके तुर कर्म जिन्हां को तुद पाया दी अवस्था जिन्होंने प्राप्त हो गई, जिन्होंने खसम नूं ध्या लिया, उन्होंने तू किरपा करके एक नानू तू मेल लै, अपने नाल मिला लेंदा है, एक आपों तुद खुआया। लेकिन कईयां नूं तू आप ही खुआर कर दिता उन्होंने कर्म वेख करके, क्योंकि चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। इह च रब दा कसूर नहीं, रब दा कोई पक्षपात नहीं, बल्कि साडे कर्म दा पक्षपात है। साडा कर्म उहदे नेड़े होण जोगा नहीं सी, साडी प्रैक्टिकल लाइफ जिहड़ी साडी उहदे नेड़े होण जोगी नहीं सी। इस करके एक आपों तुद खुआया, जिसनों आप खुआए करता खुश लए चंगियाई। गुर किरपा ते जानिया, गुरु की किरपा दे नाल जिन्हां ने जान लिया, जिथे तुद आप बुझाया। किहने जानिया? जिस हिरदे विच गुरु की मत दे करके तुद तुसी हे परमात्मा जीओ आप बुझाया, तुसी अपनी किरपा करके गुरु राही बुझा दिता, समझा दिता। अपनी मत नाल नहीं, अपनी मत नाल सोझी नहीं आ सकती, क्योंकि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन, अगन कटै सब तेरे। अपनी मर्जी नाल कोई समझ नहीं, गुरु तो बिना नहीं। ये गुरु अमरदास जी का जीवन भी साढ़े सामने है, गुरु अंगद साहब जी का जीवन भी साढ़े सामने है, भाई मन जी का जीवन भी साढ़े सामने है, भाई भगीरथ जी का जीवन साढ़े सामने है। गुरु ने कृपा की सारियां दे उत्ते, गुरु ने बख्शिश की। इस करके मत को भरम भुले संसार, गुर बिन कोई ना उतर सपार। भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगति लाया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर किरपा ते जानिया, जिथे तुद आप बुझाया। जदों ये दात प्राप्त हो गई, मैं पंक्तियां एक बार फिर रिपीट कर दियां, तुद तुर कर्म जिन्हां को तुद पाया, ताती खसम ध्याया, इन्हां जनता के बस किश नाही, तुद वेकी जग तो उपाया। एक नानू तो मेल लह, एक आपों तुद खुआया, गुर किरपा ते जानिया, जिथे तुद आप बुझाया। फिर उहदा नतीजा की निकलिया? सतगुरु कहंदे सहजे ही सच समाया। वो फिर सहज नाल अडोलता सहित सच विच समा जाते हैं। फिर दुनिया की कोई ताकत उन्होंने सच तो अलग नहीं कर सकती, सच तो दूर नहीं कर सकती। वो फिर अपना जीवन बोली है सच, धर्म झूठ ना बोली है, जो गुर दस्सै बाट मुरीदा जोली है। और सच उन्होंने अंदर इन्ना प्रबल हो जाता है,
फिर जिसके अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए। वो हर मार्ग आप चलदा होरनां नूं हर मार्ग पाए। फिर वो अपनी जिंदगी होरनां दे ਨੂੰ भी सच नाल जोड़न का यतन करता है। सारी जिंदगी सच ਨੂੰ समर्पित करके तुरदा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुरसिख की फिर सतगुरु नानक पातशाह जी की चौथी जिहड़ी जोत चौथा जामा जिहड़ा है गुरु नानक की जोत का धन गुरु रामदास पातशाह जी वो फिर कृपा करते हैं। जन नानक तूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावै।